Good morning, people. Welcome to The Hindu Extracted Vocab Dose Set 1 of Banker Buddy. Hope you all are fine there. I am Sushant Srivastav, and today onwards I will give you the lessons of vocabulary which will be quite beneficial and helpful for your upcoming IBPS RRB mains exam. And in that session, you will get the new way to learn the vocabulary by relating the pictures with the given words. That will be quite sufficient to settle all that word in your mind by revising all this session, whatever the times you can prefer. So without getting any delay, let us start our session. So the first word of this vocabulary session is conventional, where conventional is an adjective. I hope you may be aware of this kind of parts of speech like adjective. Let me give a sort of the definition of adjective. An adjective, a word that tells you more about a noun. ठीक है, किसी संज्ञा की विशेषता जो बताते हैं वर्ड, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. So let us come to the vocabulary. Conventional, the Hindi meaning of the word conventional is paramparik. Okay, and the English meaning is normal and traditional. And here are the synonyms: standard, regular, stereotype. All these are the synonyms of the conventional, and antonym is original. And example sentence is given there. In many cultures, a handshake is a conventional greeting exchange between people meeting for first time. या हमारे यहाँ कई कल्चर है जहाँ पे हैंडशेक एक एक प्रकार के कन्वेंशनल, एक पारंपरिक, हम लोग उससे बधाई देने में हम लोग मतलब वो परफॉर्म करते हैं जब हम किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं. ओके, and these are the pictures which I was talking to you, and you can easily relate this picture with the given word. Here the word is conventional, and you can easily relate this picture that there is a wooden stick which is burning, which depicts our old tradition of burning the wood for cooking purpose or getting energy. And on the other side there is a wind fan which depicts the modern way to get energy. Okay, so let us move towards our next word, commit. Commit is a verb, uh, and the Hindi meaning of the word commit is समर्पित होना. किसी भी काम में समर्पित होना या किसी भी एक्टिविटी में समर्पित होना, commit को बोलते हैं हिंदी में. and the English meaning of the word commit is devote. Okay, and the synonyms are devoted, loyal. आप लॉयली कितने उस काम में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो होता है कमिट. एंड एंटोनिम इज अपेथेटिक. अपेथेटिक मीन्स उदासीन होता है, उदासीन. ठीक है. And the example sentence of the word commit is, we are committed to the fundamental principles of democracy. हमारे जो लोकतंत्र है उसमें मूल उसके मूल सिद्धांतों के प्रति हम समर्पित हैं, ये एग्जाम्पल में कह रहा है. एंड हियर द पिक्चर डिपिक्ट्स हाउ टू पर्सन आर कमिटेड towards each other in their partnership. Okay, so you can easily relate that word with picture. That will be quite sufficient and to get the meaning of the word. Okay, so let us move towards our next word, counter. Counter is a verb, and Hindi meaning of the word counter is विरोध करना. विरोध करना, जैसे विरोध प्रदर्शन करते हैं ना, वही विरोध करना होता है.
एंड इंग्लिश मीनिंग इज कन्फ्लिक्टिंग, अपोजिंग। हम किसी को अपोज कर रहे हैं, किसी के उल्ट, मतलब जो पीपल एक पर्सन बोल रहा है उसको मैं अपोज कर रहा हूँ, मैं अपना दूसरा मत दिखा रहा हूँ, तो उससे अपोजिंग, कन्फ्लिक्टिंग वही हो जाता है। Synonyms are obverse, contradict. Obverse means just opposite what you say, what you perform. And antonym is support. Support is just to show your support to anyone. And the example sentence of the word counter is given that they countered the plan to raise taxes. Means कोई पर्सन है वो प्लान का विरोध कर रहे हैं जस्ट टू रेज द टैक्सेस, टैक्स बढ़ाने के लिए। एंड पिक्चर हियर आल्सो डिपिक्टिंग द सेम, द पर्सन both are opposing each other. Okay, so let us move towards the next word. Erstwhile. Erstwhile is an adjective, and the Hindi meaning of the word erstwhile is bhutpurv, and English meaning is former. भूतपूर्व मीन्स पहले का, जो बीत चुका है, जो पास्ट में जा चुका है। ओके, तो synonyms are old, past, previous, and antonym is present, जो आपके वर्तमान में है। And the sentence given below for the word erstwhile is the erstwhile president of the company died recently. भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट है कंपनी के, वो उनकी मृत्यु हो गई है। And for the same word erstwhile, I just I just wanted to show you this black and white picture of our first president, Dr. Rajendra Prasad, so that you can easily settle this word by relating the picture in your mind. Okay, hope you are enjoying this session. Okay, let us move toward the next word. Unrelenting. Okay, unrelenting is an adjective which means निरंतर in हिंदी। हिंदी में निरंतर बोलते हैं, निरंतर कुछ कंटिन्यूअस करते रहना। ओके, कुछ किसी भी काम का होना, निरंतरता बोलते हैं जिसे। एंड द इंग्लिश मीनिंग इज कंटिन्यूअल, मर्सीलेस। मर्सीलेस मीन्स कठोर। ओके, यहाँ कठोर से मतलब नहीं है, मतलब आप कठोर कितने आर्ड्यूअस है, मेहनती है, आप काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, सच काइंड ऑफ कठोरता इज depicting here. Merciless, that means synonym are constant, continuous। एक निरंतर किसी काम का होना, निरंतर किसी चीज़ का होना, continuous and constant यहाँ बताया गया है। and antonym is intermittent। intermittent means रुक रुक कर होना। okay, and the example sentence is 90 minutes of unrelenting training left the boxer extremely tired। means 90 मिनट के कठोर प्रयास और निरंतर ट्रेनिंग के बाद बॉक्सर टायर्ड हो गया, मतलब वो थक गया। Here picture also depicting the children are jumping using that jumping rope continuously. Okay, so let us move towards our next word. Content. Content is an adjective. Content is an adjective. Okay, and the Hindi meaning is संतुष्ट। संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन जिसे हम बोलते हैं। कंटेंटेड संतुष्ट ही हुआ, इंग्लिश में कंटेंटेड बोलते हैं कंटेंट का। एंड सिनोनिम्स आर सेटिस्फाइड, प्लीज्ड। जितनी आप सेटिस्फाई है किसी भी चीज़ से, किसी भी वर्क से, अपने रिजल्ट से, एनीथिंग वुड बी देयर। प्लीज्ड मतलब वही खुशी, खुश हैं आप। एंड एंटोनिम इज डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट। एंड द एग्जांपल सेंटेंस इज he seemed more content, less bitter in that work। वह उस काम में बहुत कम कठोर और कुछ ज़्यादा ही संतुष्ट जान पड़ता है। तो वो ज़्यादा ही संतुष्ट है किसी काम में, सिवाय वो अपना कठोरता के। एंड पिक्चर इज ऑल्सो डिपिक्टिंग हाउ the people are satisfied with their work and they are handshaking. Okay,
So let us move towards our next word. Clamor. Clamor is a noun, and the Hindi meaning of the word clamor is kolahal. Noise, tumult is are the English meaning of the word clamor. Tumult means asanti. Okay, and the synonyms are racket, uproar. Uproar is also means kolahal, and racket. Racket also means शोर मचाना, and racket means अवैध रूप से कमाया हुआ धन को भी हम रैकेट बोलते हैं. एंड एंटोनिम इज साइलेंट, शांति जिसे हम बोलते हैं. एंड एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड क्लैमर इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय पीपल रोज टू क्लैमर. किसी यहाँ क्वेश्चन की बात की जा रही है, जो पीपल है लोगों के द्वारा पूछा गया, तो वो कोलाहल का रूप ले लिया वो. Okay, and picture also depicting how people making noise for their demand. Okay, so let us move towards our next word. अगले word की तरफ हम जाएंगे अपने. Perfunctory. Perfunctory is an adjective, and Hindi meaning of the word perfunctory is असावधान, careless. असावधान वही है. And English meaning is cursory, means वही असावधानी होता है. Synonyms are desultory, quick. यहाँ पे क्विक का मतलब जल्दी काम करना. अकबकी में आप कितने काम कर रहे हैं बिना कुछ सोच समझे, उसका मतलब है क्विक से यहाँ पे. एंड डिसल्ट्री मीन्स आप बोल सकते हैं निरुद्देश, बिना किसी उद्देश्य के काम को डिसल्ट्री यहाँ बताया गया है, जब जल्दीबाजी में काम किया गया है. एंड एंटोनिम इज केयरफुल, सावधान. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड परफंक्ट्री इज ही गेव मी अ परफंक्ट्री नोट. मतलब यहाँ किसी काम को दर्शाया जा रहा है और उसमें उस आदमी ने अपने असावधानी पूर्वक सहमति दिखाई. एंड here you can also refer the word perfunctory with this picture, how a boy is crossing the road. Instead of getting that the car is coming towards him, and also he has put the headphone, which is not a good thing while doing or crossing the roads. Okay, so let us move towards the next word. Distress. Distress is a noun, and the Hindi meaning of the word distress is संकट. संकट यहाँ बताया गया है. एंड English meaning is anguish. Anguish means वही कष्ट, वेदना, व्यथा जिसे हम बोलते हैं. anguish बोला गया है. पेन जिसे हम बोलते हैं. ठीक है. Synonyms are suffering, pain, agony. Agony here also refers to the same in Hindi, संकट. Okay, agony को हम वही कष्ट बोलते हैं और वही संकट होता है उसका मतलब. And antonym is happiness, just opposite. And the example sentence of the word distress is story remains as distressing as it was in 19th century household. तो एक कहानी है, वो अभी भी उतने ही तनावपूर्ण और कष्टमय हैं जैसा कि वो 19th सेंचुरी के घरों में हुआ करते थे. एंड यू कैन easily relate the given picture with the word. Okay, so let us move towards the next word, 10th word, which is senseless. Senseless is an adjective which means in Hindi बेहोश. बेहोश means pointless in English. बिना किसी सोचे समझे काम करना, hopelessly to do anything. Okay, and synonyms are futile, hopeless, irrational. Irrational means तर्कहीन, किसी चीज़ का तर्क ही ना निकले उसे तर्कहीन बोला जाता है. इंग्लिश में इरेशनल होता है. अब फ्यूटाइल मीन्स आप बोल सकते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है फ्यूटाइल का. होपलेस होना, ये सब सेंसलेस के synonyms है. And antonym is sensible. Sensible means
आप आप तर्क संगत जितने काम करते हैं, बात करते हैं, उसे सेंसिबल बोलते हैं। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस इज, इट वॉज एज सेंसलेस एज क्रॉसिंग डेथ वैली ऑन फुट। यह इतना ही बेहोशी भरा और इतना ही फ्यूटाइल था, जैसे कि डेथ वैली को नंगे पांव क्रॉस करना। ठीक है, समझ गए होंगे। सेंसलेस का मतलब पॉइंटलेस होता है। एंड यू कैन इजिली डिपिक्ट दिस वर्ड विद द पिक्चर, हाउ पर्सन is cutting the branch on without getting any fear that without any getting the consequences after that. So let us move towards the next word. This is legitimate is an adjective. Okay, legitimate is an adjective, and Hindi meaning of the word legitimate is वैध, and English meaning is valid. Valid means मान्य, वो कितना मान्य है। Synonyms are sound, admissible. Admissible here means allowable. किसी भी चीज़ का किसी के द्वारा अलाउ किया जाना, अलाउ है वो काम। एंड एंटोनिम इज इनवैलिड, अमान्य जिसे हम बोलते हैं, इनवैलिड। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस इज, he should at least give a legitimate excuse for being late. उन्हें अपने लेट होने का एक वैध बहाना देना चाहिए था। ओके, and here is the picture also referring word legitimate. This is a symbol of our law. Okay? So let us towards the next word, conviction. Conviction is a noun, and Hindi meaning of the word conviction is निश्चय, and English meaning is certainty. निश्चय मतलब किसी भी चीज़ का निश्चय ही होना, निश्चित है वो। ओके, synonyms are certitude. Certitude means surety. Assurance means विश्वास, confidence you can say. Antonym is uncertainty, अनिश्चयता। Example sentence of the word conviction is, he had been speaking for some 5 minutes with force and conviction. Conviction का मतलब दृढ़ विश्वास भी बोल सकते हैं, दृढ़ विश्वास, अपराध सिद्ध होना, तो कन्विक्शन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस में बोला जा रहा है, वह कुछ 5 मिनट से लगातार बलपूर्वक और निश्चय ही मतलब बोले जा रही थी। एंड पिक्चर is also depicting the same, how a person is crossing from one into another by completing the gap, huge gap with his confidence. So let us move towards the next word. अगले वर्ड की तरफ जाएंगे हम लोग। इंड्यूस, इंड्यूस इज ए वर्ब, उत्प्रेरित करना, और सिंपली प्रेरित करना बोलते हैं इसे हिंदी में। एंड इंग्लिश मीनिंग इज परसुएड। परसुएड मीन्स मनाना, किसी को फुसलाना बोल सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स आर कन्विंस, कन्विंस का मतलब वही मनाना हो गया। गेट, कोएक्ट मतलब वही हो गया, परसुएड मनाना। ठीक है, एंटोनिम इज डिसुएड। डिसुएड मीन्स रोकना किसी को किसी काम के लिए। एग्जाम्पल सेंटेंस इज, द एडवर्टीजमेंट इज मेंट टू इंड्यूस पीपल टू ईट मोर फ्रूट। मीन्स वह प्रचार लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने को प्रेरित करने के लिए था। एंड पिक्चर, यू कैन रिलेट पिक्चर, आप पिक्चर को रिलेट कर सकते हैं वर्ड इंड्यूस से, कि पर्सन अपने जो मतलब लिख के शो कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं पीपल को टू बाय माई केक। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ेंगे आज। इंडक्ट, इंडक्ट इज ए वर्ब, प्रतिष्ठित करना। ओके, प्रतिष्ठित करना मतलब प्रतिष्ठित करना मीन्स आरंभ करना। ओके, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित करना जैसे हम बोलते हैं ना, शुरुआत करना। और इनलिस्ट मीन्स शामिल करना, इनलिस्ट इंग्लिश में बोला गया है। सिनोनिम्स आर अलाउ इनटू, इंट्रोड्यूस इनटू, इंट्रोड्यूस मीन्स किसी को शामिल करना। ओके, एंटोनिम इज फार फ्रॉम, रोका जाना, फार फ्रॉम रोका जाना होगा।
Example sentence is arrangements have been made to induct new members to the organization. इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर बनाए गए नए मेंबर को इंडक्ट करने के लिए, शामिल करने के लिए. ओके. एंड picture also depicting the same for the word induct. Okay. Person is being selected by a body. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम. accessible. Accessible is an adjective and the Hindi meaning of the word accessible is sugam. Sugam means how easily thing is happening or you can go towards. That is called in Hindi sugam. And English meaning of the word accessible is approachable. Approach, किसी भी चीज़ को आप अप्रोच कर रहे हैं इजीली, अप्रोच किसी और की तरफ हो रहे हैं, वो है. ठीक है. सिनोनिम्स है अवेलेबल, इजी गोइंग, एंड एंटोनिम इज अनअप्रोचेबल, जिसको हम अप्रोच ना कर सकें. एंड एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड एक्सेसिबल इज ही इज मोर एक्सेसिबल दैन मोस्ट टाइफून. मीन्स वह किसी पर्सन की बात किया जा रहा है, व्यक्ति की, उनके पास पहुंचना काफ़ी सुगम है बजाय इन्हीं अदर टाइकून्स के. टाइकून हियर मीन्स एन उद्योगपति हम बोलते हैं, और बिजनेसमैन, a person who has a lot of money, that is called tycoon. Okay. And the picture also depicting the same, that how wheelchair is excessively uh, moving on the ramp. Okay. So the next word is overwhelming. Overwhelming इसको बोलते हैं हम, और ये एडजेक्टिव है. ओके. एंड हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड ओवरवेलमिंग इज अपरिहार्य. अपरिहार्य, आवश्यक. ओके. अपरिहार्य होना, मतलब इम्पॉर्टेंट. एंड इमेंस इज द इंग्लिश वर्ड. इमेंस मीन्स अत्यधिक. अत्यधिक भी इसे हम बोलते हैं ओवरवेलमिंग. सिनोनिम्स आर प्रोफ्यूज. प्रोफ्यूज मीन्स बड़े ही ज़्यादा अमाउंट में, एकदम गहन है वो. ठीक है. एंड इनॉर्मस मीन्स बड़ा. इनॉर्मस अमाउंट जिसे हम बोलते हैं, एकदम बड़ा, ह्यूज अमाउंट. ओके. एंटोनिम इज स्मॉल, एकदम कम अमाउंट में, कम है जो, स्मॉल बोला गया यहाँ पे. ओवरवेलमिंग का एंटोनिम. एन एग्जाम्पल सेंटेंस इज हिज पार्टी वोन ओवरवेलमिंग सपोर्ट. उसकी पार्टी ने अत्यधिक सपोर्ट के साथ जीत गया. एंड पिक्चर ऑल्सो डिपेक्टिंग द सेम, हाउ person is overburdened by his work. Okay. So चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे. एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज inequality. Inequality is a noun. Okay. Inequality is somewhere you might have learned in the reasoning section. Inequality symbols given there. Okay. So come on the word inequality. असमानता. And English meaning is imbalance. And here are the synonyms of the word inequality is that inequity, disproportion, prejudice. Prejudice means bias, पक्षपात जिसे हम बोलते हैं. disproportion means विषमता या असमानता बोल सकते हैं. एंड एंटोनिम इज इक्विटी. इक्विटी मीन्स बराबर का हिस्सा. इक्विटी शेयर, इक्विटी बोलते हैं ना कॉमर्स, वही इक्विटी. एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है. सोशल इनइक्वालिटी इज नाउ ऑन इट्स पीक. सामाजिक असमानता अपनी चरम सीमा पे है, ये बताया गया है. एंड यू कैन इजली रेफर द वर्ड इनइक्वालिटी with this picture. How one thing is what is the taking the lead role, overcoming the rest part. मीन्स इट इज़ सम काइंड ऑफ पक्षपात. मीन्स ये बाइज्ड है. ठीक है. इक्वल यहाँ इक्वालिटी यहाँ नहीं है, वही दर्शाया गया. चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग चलेंगे. इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज ए नाउन, जिसे हम हिंदी में अखंडता बोलते हैं.
ठीक है। एंड द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटीग्रिटी इज यूनिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं ना, वही यूनिटी है। सिनोनिम्स आर यूनिफिकेशन, होलनेस, रेक्टिट्यूड। कंप्लीटनेस, होलनेस, रेक्टिट्यूड वही यहाँ पे बताया गया है। यूनिफिकेशन किसी अखंडता, यूनिफिकेशन जिसे हम बोल रहे हैं। एंटोनिम इज डिवीज़न। डिवीज़न मीन्स उसमें दरार, मतलब वहाँ पे मतलब यूनिटी है ही नहीं, सेक्शन से बटे हुए, डिवीज़न है वहाँ पे। एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ पे बताए गए हैं। द पीएम who upholds territorial integrity and national sovereignty। क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राइम मिनिस्टर बनाए रखते हैं। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट द वर्ड इंटीग्रिटी विद दिस पिक्चर, हाउ people joining each other and making their strength। Okay, unity is unity is strength। Okay, so let us move towards the next word, brutal। brutal is an adjective, जिसे हम क्रूर बोलते हैं हिंदी में। ओके, एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रूटल इज सेवेज। सेवेज मीन्स वही हो गया, कठोरता, कठोर पूर्वक, क्रुएल्टी। ठीक है। सिनोनिम्स आर क्रूएल, ब्लड थ्रस्टिंग मीन्स खून का प्यासा, मीन्स खून का प्यासा, नॉट सच काइंड ऑफ, हेयर द ब्लड थ्रस्टी is depicting a person is how brutal a person is। Ferocious means खूंखार। An antonym is gentle। Gentle means how a person gently appear, that kind of gentle। तो gentle होता है इसका मीनिंग। Example sentence of the word brutal is he was accused of a brutal murder। कितने मतलब उसने जो क्रूरतापूर्वक जो मर्डर किए हैं उसके लिए उस पर अभियोग लगाया गया, इल्ज़ाम लगाया गया। एंड एंड यू कैन रेफर द पिक्चर with the word brutal, how two persons brutally beating that person lying on the surface। Okay, so let us move towards the word. Allude is a verb। Allude is a verb here। Here two kinds of allude is there are there, ALLUDE। here is the word allude which means संकेत करना, संकेत करना in हिंदी। एंड संकेत करना means to hint at। ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे संकेत करना means to hint at। एंड सजेस्ट करना आप बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही एक बात को क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे ALLUDE है या एल्यूड है, सेम प्रोनाउंसिएशन एक और वर्ड होता है एल्यूड के लिए। अब वो दूसरा वर्ड है ELUDE, एल्यूड। वो एल्यूड का मतलब होता है हाथ ना आना और बच निकलना, मीन्स टू स्केप। वो एल्यूड का मतलब स्केप होता है। ठीक है, लेट अस कम ऑन दिस एल्यूड। सिनोनिम्स आर इम्प्लाई, मेंशन, इंसिनुएट। इंसिनुएट मीन्स हिंट करना, संकेत करना, मेंशन करना किसी को। इम्प्लाई मतलब क्या मतलब निकल रहा है, इम्प्लाई उसे बोलते हैं। एंड एंटोनिम इज स्पेसिफाई। स्पेसिफाई मतलब साफ साफ, स्पष्टता किसी भी चीज़ का, वही स्पेसिफाई करता है। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस इज ही डज नॉट allude टू हैमिल्टन इन द सेकेंड एडिशन ऑफ हिज वर्क। उसने हैमिल्टन का जिक्र अपने सेकेंड एडिशन ऑफ वर्क में नहीं किया, ये बताया गया। एंड यू कैन इजली रिलेट दिस पिक्चर विद द वर्ड एल्यूड। अ गर्ल इज सजेस्टिंग टू अदर गर्ल to read this book। Okay, so let us move towards the next word, and the next word is inundate। Inundate is a verb and Hindi meaning of the word inundate is बाढ़ लाना। मतलब बाढ़ आता है ना, ज़्यादा जब वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाता है।
वही inundate यहाँ बताया गया है, and the English meaning is simply flood. Synonyms are deluge. Deluge means वही बाढ़, ठीक है. Overflow means ओवरफ्लो होना किसी भी चीज़ का, अत्यधिक, मतलब वही बाढ़ को बताया गया है जो पानी ओवरफ्लो होता है. एंड एंटोनिम इज ड्रेन. ड्रेन मीन्स सूखा, मीन्स पानी को निकाल देना, ड्रेन. Example sentence of the word inundate is the islands may be the first to be inundated as sea level rise. मतलब सी लेवल के राइज होने से, मतलब समुद्र का स्तर जो है उसके बढ़ने से ये आइलैंड पहला है जो जहाँ पे बाढ़ आया है. एंड पिक्चर इज क्लियरली रिप्रेजेंटिंग द वर्ड इनंडेट. ओके, बाढ़ यहाँ पे कैसे आया है वही शो कर रहा है. आप लोग पिक्चर को आसानी से मतलब रिलेट करके देखिएगा तो इजीली सेटल हो जाएगा. ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली get the way how to settle all these words in your mind. Okay, so let us move towards the next word. Jeopardy is a noun. Jeopardy noun है, and for which the Hindi meaning is खतरा, danger जिसे बोलते हैं. Peril is the Hindi meaning of the word jeopardy. Peril मतलब ही खतरा ही होता है. Peril, perilous जिसे हम बोलते हैं. Synonyms are danger, risk, and antonym is safety. How safe something is or someone is. Okay. Example sentence of the word jeopardy is the whole peace process is in jeopardy. संपूर्ण अ, जो शांति का प्रक्रिया है वो खतरे में है. Okay? You can relate this word with the picture. आपको दिमाग में बैठा लेना है. jeopardy means क्रॉस बोन और स्कल होता है, डेंजर के जो सिंबल होते हैं. ओके, जियोपार्डी से इसको रिलेट कर लेना. जियोपार्डी मतलब खतरा. और एक और वर्ड होता है जियोपार्डाइज. जियोपार्डाइज मीन्स जोखिम में डालना. ठीक है, जियोपार्डी से निकला हुआ वर्ड जियोपार्डाइज में जोखिम में डालना. ओके, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड. डेट्रीमेंटल इज एन एडजेक्टिव. ओके, डेट्रीमेंटल हानिकारक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. एंड द वर्ड and the English meaning of the word detrimental is harmful. Okay, synonyms are damaging, injurious. Okay, and antonym is benign. Benign means kripalu, dayalu. Okay, and example sentence of the word detrimental is recent policies have been detrimental to the interests of many old people. हाल ही के जो नीति बनाए गए हैं वह ओल्ड पीपल के इंटरेस्ट, तो हित के लिए हानिकारक है. ओके, the picture also representing the same for the word detrimental, that cigarette and tobacco is cigarette and tobacco, all these are injurious to our health, like that similar depicting there. So let us move towards the next word. Here is the word of the day, and the word of the day is mess around. Mess around means to waste time. Okay, and example sentence is the manager told him to stop messing around and get on with his work. मैनेजर ने उससे बोला कि समय को व्यर्थ ना करने को और अपने साथ काम में शामिल करने को कहा. Picture also representing same for the word mess around is how a boy is watching outside the window instead of studying and doing his work. So okay, this was the last word of the day. होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे. मेरा आज ये पहला दिन था, सो अगर किसी प्रकार का गलती हुआ हो तो माफ़ कर दीजिएगा. नेक्स्ट टाइम मैं उस पर वर्क करूँगा. एंड थिंग आई विल से टू यू ऑल दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम and just revise this session twice, thrice, how much means whatever the times you can prefer.
just revise it and just relate all these pictures with the word. ओके, आपके लिए अच्छे होंगे। और भी सेशंस आएंगे, तो चलिए यहीं पे मैं आज के इस लेसन को स्टॉप करना चाहूँगा, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। ओके, so till then keep studying, stay safe, have a good day, Jai Hind।